today we will discuss chapter 5 of class 10th arithmetic progressions. So first we'll see AP. What is an AP? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हर टर्म ऑब्टेन की जाती है एक फिक्स नंबर ऐड करने से जो पहले की टर्म है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि हमेशा हमें फर्स्ट टर्म दी होती है, हम फर्स्ट टर्म को कभी ऑब्टेन नहीं कर सकते किसी प्रीसीडिंग टर्म से ऐड करने के बाद. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल. कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स. दीज आर द लिस्ट ऑफ नंबर्स. ओके, हम देखते हैं कि AP कब होती है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स. आई विल शो यू व्हेन दिस इन AP. See, I have done here an example. I have taken a list of number, this one 1 2 3 and 4. इसमें जो A1 है वो 1 है, A2 2 है, A3 3 है और A4 4 है. D होता है कॉमन डिफरेंस. A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म. ओके, D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1. A2 2 है तो 2 माइनस 1, ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है. जिस भी लिस्ट ऑफ नंबर्स में कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसी को हम AP कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई. हमें कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, हमें ये बताना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इसमें दिए गए हैं वो एक AP बनाते हैं या फिर नहीं और क्यों. फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. इसमें बोला गया है कि एक टैक्सी फेयर है, टैक्सी का बिल है वो ₹15 है 1 किलोमीटर के लिए और ₹8 है अगले और एक और जो ऐड होगा किलोमीटर उसके लिए. सो लेट्स सी दिस पार्ट. दैट इज आंसर नंबर 1, पार्ट 1. ओके, लेट so we can see in this question that taxi fare for first kilometer is ₹15. So taxi fare for 2 kilometer we can just add 15 plus 8 because it is given in the question that ₹8 for each additional kilometer. 15 plus 8 is equals to 25. And then taxi fare for 3 kilometer, 25 plus 8, that is 31. And taxi fare for 4 kilometer is 31 plus 8, that is 39. So we can see that clearly 15, 25, 31, 39 and dash dash forms an AP because they have a same common difference. I have told you that which list of numbers have same common difference, they form an AP because every term is 8 more the preceding term. Now second part is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. इसमें बोला गया है कि जो अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर में प्रेजेंट है और जब हम उसमें वैक्यूम पंप से 1/4 ऑफ द एयर रिमूव कर देते हैं और जो फिर उस सिलेंडर में बाकी एयर बच गई है तो हमें बताना है कि जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं वो AP कैसे फॉर्म करते हैं और क्यों. सो सेकेंड पार्ट
So let the initial volume of air in cylinder be V, and we have seen in the question that the vacuum pump removes 1/4 of the air. So we will write here that the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder. So we can say that after every stroke only we will minus 1/4 is equals to 3/4 part of air will remain. So now our list of number is that is A, that is volumes are V, 3/4 V and 3/4 square V and 3/4 cube V and then dash dash आगे तक चलती रहेंगी. So now we can see that in this list of numbers there is no same common difference. So we can say that this doesn't form an AP. Hence it doesn't form an AP. Okay, now we have our third part. Our third part is the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. ये कह रहा है कि जो कोस्ट है, रकम है एक गड्ढे को खोदने की हर मीटर पर, वो 150 रुपये है पहली मीटर के लिए, और जो आगे की एक और एडिशनल मीटर है उसकी 50 रुपये बढ़ती जाएगी. तो हमें इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में बताना है कि AP फॉर्म करेगा और कैसे और क्यों करेगा. ओके, सो वी कैन सी दैट cost, we have seen in the question that cost of digging 1 meter is rupees 150 and cost of digging 2 meter, 150 plus 50 is equals to 200. Then cost of digging 3 meter is equals to 200 plus 50, that's 250. And then 4 meter, 250 plus 50 is equals to 300. So now we can see clearly that 150, 200, 250 and 300 has a same common difference of 50. Okay, so this forms an AP because every term is 50 more than preceding term. Okay, fourth part is the amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum. तो अब हमें ये सॉल्व करना है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि if rupees P is deposited at R% compound interest per annum for n years, then our money will be, that is the CI formula, compound interest formula, P1 plus R by 100n. Okay, now we will see answer.
fourth part. Therefore, after every year, our money will be 10,000. 1 plus 8 by 100. 10,000. 1 plus 8 by 100 by square. 10,000. 1 plus 8 by 100 क्यूब. ये आगे तक चलता रहेगा, डैश डैश डैश. तो जैसे कि हमें इसे देख के पता लग रहा है कि AP फॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेगा, हैंस इट डजंट फॉर्म एन AP. AP. Now we will solve answer question number 2. Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. Okay, I will show you the first part. First part है A is equals to 10, D is equals to 10. का A plus 3D. तो ये हमारी A1 वाली वैल्यू है और ये D है. तो हमें बताना है इसके आगे की टर्म्स. तो A तो हमारा 10 है और हमें बतानी है A2. A2 हो गया A1 प्लस D. 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20. A3 हो गया A2 प्लस D. 20 प्लस 10 30. A4 हो गया A3 प्लस D. 30 प्लस 10 दैट्स 40. ये हमने रहती है अभी. A4 प्लस D. 40 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 50. तो ये हमारी पहली 4 टर्म्स आ गई. 20, 30, 40, 50 एंड इसके आगे चलती रहेंगी. आगे 10 है. ओके, दिस इज द. नाउ आई विल सॉल्व सेकेंड पार्ट फॉर यू. सेकेंड, A is equals to -2 and D is equals to 0. A1 हमारे पास -2 है. A2 होता है A1 plus D is equals to -2 plus 0 is equals to -2. Then A3 is equals to A2 plus D is equals to -2 plus 0. तो इसकी सारी टर्म्स -2 आएंगी. A4 भी -2 एंड A5 भी -2. तो इसका कॉमन डिफरेंस 0 था, इसलिए इसकी सारी टर्म्स सेम आई हैं और हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स बता दी हैं. नाउ जो मुश्किल सा पार्ट होगा मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाती हूँ. फोर्थ पार्ट. A is equals to -1 and D is equals to half. ओके, A1 तो हो गया -1 और A2 हो जाएगा A1 प्लस D दैट्स -1 प्लस 1/2. तो हमें इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना है. ये आ जाएगा -1/2. देन A3 A2 प्लस D -1/2 प्लस 1/2 तो ये 0 आ जाएगा. देन A4 A3 प्लस D 0 प्लस 1/2 तो ये 1/2 आ जाएगा. देन A5 A4 प्लस D 1/2 प्लस 1/2 तो ये आ जाएगा 1/4. तो ये पहले की 4 टर्म्स निकल गई. -1/2 0 1/2 एंड 1/4. इसके आगे डैश डैश ऐसे चलता रहेगा क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है. ओके, देन ये बाकी दोनों आप पार्ट खुद कर सकते हैं, ये इजी है. देन है क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. दिस इज वेरी इजी. ओके, आंसर नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3 एंड डैश डैश. हमें बताना है इसमें A एंड D बताना है. A तो फर्स्ट टर्म होगी 3 और D होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 माइनस A1. A2 है इसमें 1
और ये a1 3, तो 1 माइनस 3 हो गया -2। देन मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखाती हूँ। थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड डैश डैश। इसमें a तो हो गया 1/3, a तो सिंपली फर्स्ट टर्म होती है ना, वही है a, और d 5/3 माइनस 1/3, तो आ जाएगा 4/3। और आगे के पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, हमें बताना है इस क्वेश्चन में एपी कौन कौन सा है। अगर ये एपी फॉर्म करते हैं हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और जो उसके आगे जो 3 और टर्म्स हैं वो भी फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बताती हूँ। 2, 4, 8 एंड 16। हमें बताना है कि ये एपी है या फिर नहीं। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ताकि हम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर सेम हुआ तो ही एपी होता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 4 माइनस 2, 2 हो गया। d2 निकालेंगे तो 8 माइनस 4, 4 है। तो ये देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो हैंस इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ये वाला सॉल्व करके दिखाती हूँ। 8th पार्ट। 8th पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड डैश डैश। इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। -1/2 -1/2 होगा, ओके। तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा, क्योंकि इसकी जो सारी टर्म्स हैं वो भी सेम ही हैं। सी ये 0 है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस इट फॉर्म्स एन एपी। और क्वेश्चन में लिखा था अगर ये एपी होगा तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस तो 0 हो गया, और 3 आगे की टर्म्स और फाइंड करनी है, तो 3 मोर टर्म्स सेम ही होंगी इसकी। तो 3 मोर टर्म्स आर -1/2, -1/2, -1/2। तो अब मैं आपको 4th वाला पार्ट करके दिखाती हूँ। 4th वाला पार्ट है -10, -6, -2, 2 एंड डैश डैश। सो d1 हो गया -6 माइनस -10 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। d2 -2 माइनस -6, तो 4 आ जाएगा। d3 देख लेते हैं, +2 -2, तो ये भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, सो हैंस इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी, ओके। और जिसकी 3 मोर टर्म्स हैं वो भी हम फाइंड करेंगे। 3 मोर टर्म्स हैं इसकी। सिंपली 2 जो लास्ट की टर्म है उसमें 4 प्लस कर देंगे, 6 में 4 कर देंगे 10 में 4 कर देंगे 14, ओके। अब मैं 5th पार्ट बता देती हूँ आपको। 5th पार्ट है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, आगे डैश डैश। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 3 + √2 -3, ये आ गया √2। d2 देखते हैं। 3 + 2 √2 -3 + √2 इज इक्वल्स टू, इसका भी कॉमन डिफरेंस √2 आ जाएगा। एंड d3 देखते हैं। 3 + 3 √2 -3 + 2 √2
इज इक्वल्स टू, इसका भी कॉमन डिफरेंस √2 आ जाएगा. हैंस इट फॉर्म्स एन AP बिकॉज इट हैज सेम कॉमन डिफरेंस. Now we will find out 3 more terms. 3 more terms are 3 plus 4 √2, 3 plus 5 √2 and 3 plus 6 √2. Okay, now I will show you the next part, 10th part. Okay, 10th part है A, 2A, 3A, 4A. D, 2A minus A, D2, 3A minus 2A, A. तो इसमें सेम कॉमन डिफरेंस है, हैंस इट फॉर्म्स एन AP. Three more terms are 5A, 6A, 7A. Now I will show you the 11th part, that is A square, A cube and A4. Okay, 11th part, A square, A cube, A4 dash dash. Now D, A square minus A is equal to, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो D2 करते हैं. A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो ये आगे सॉल्व नहीं होंगे, तो हम देख सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. सो हैंस इट डज नॉट फॉर्म एन AP, doesn't form an AP. Now the next part, 12th part सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं आपको. So 12th part, √2, √8, √18 and √32. इसको हम सिंपलर फॉर्म में कर लेते हैं. √8 को हम 2√2 लिखते हैं और √18 को 3√2 एंड √32 4√2. अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. 2√2 माइनस √2 तो आ जाएगा √2 एंड D2. 3√2 माइनस 2√2 तो आ जाएगा √2. D3 देखेंगे, 4√2 माइनस 3√2 तो आ जाएगा √2. तो इसका सेम कॉमन डिफरेंस है, हैंस इट फॉर्म्स एन AP. Hence it forms an AP. 3 more terms are √50, √72 and √98. Now we will solve 13th part. √3, √9, √12. D1 है √6 माइनस √3. D2 है √9 माइनस √6 एंड D3 है √12 माइनस √9. सो ये सॉल्व नहीं होंगे, तो हैंस इट डज नॉट फॉर्म एन AP बिकॉज इट डजंट हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. Now we will solve 14th part. That is 1 square, 3 square, 5 square, 7 square dash dash. D is 3 square minus 9, 6 minus 1, 5. D2 is 5 square minus 3 square is equals to 25 minus 9, 16. Then D3, 7 square minus 5 square, 7 sevens are 49, 5 fives are 25, that's 24. So it doesn't have the same common difference, hence it doesn't form an AP. Hence
it doesn't form an AP. Now we will solve the last part, that is the 15th part. Okay, xv 1 square, 5 square, 7 square and 73, then dash dash. D is equals to 5 square minus 1 square, 5 5 is 25, 25 minus 1 24, then D 7 square minus 25 square, 5 square is equals to 49 minus 25, that's 24, and then D 73 minus 7 square is equals to 73 minus 49. We again got 24, so it have same common difference. So we can say that hence it forms an AP. It forms an AP. हमें बतानी है 3 more terms. 3 more terms are 97, 121, 145. For more educational videos, please subscribe to